लास्ट क्लास जो एक शीट ली थी अपन ने, उसकी क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस किया गया जिसमें सी डी जीन वाले इंडिविजुअल को एक वाइल्ड टाइप प्लस प्लस से क्रॉस किया जाता है। इसके रिजल्ट में प्लस प्लस के इंडिविजुअल है 900, प्लस डी इंडिविजुअल्स आर 115, सी डी इंडिविजुअल्स आर 880 एंड सी प्लस इंडिविजुअल आर 105। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन जीन सी एंड डी। अब लास्ट क्लास अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला वाज परसेंटेज recombination is equal to number of recombinants by total number of progeny, total number of progeny into 100। रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर निकालने के लिए अपन को नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकालने हैं। अब सी डी एंड प्लस प्लस आर पेरेंटल टाइप, यानी दिस वन एंड दिस वन आर पेरेंटल टाइप। रिकॉम्बिनेंट्स कितने हुए, 220 डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज। कितने प्रोजेनीज ऑब्टेन हुए, इनटू 100। तो इसका आंसर आएगा 11। 11% रिकॉम्बिनेशन ऑब्टेन होता है इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अब एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, 1% रिकॉम्बिनेशन is equal to 1 map unit distance between the two genes। अगर 11% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन की जा रही है तो जीन C और D के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 11 मैप यूनिट। क्लियर? So this is the first question. Now come to second question. Question number 2 में maize में colored endosperm is dominant over colorless and full endosperm is dominant over shrunken. Now when a dihybrid F1 generation was test crossed to produce 4 phenotypes. Phenotype क्या है, colored, full 48%, colored, shrunken 5%, colorless, full 7% and colorless, shrunken 48%। क्वेश्चन में क्रॉस में क्या है, colored, full is crossed with colorless, shrunken। Okay, so this is the data given in the question। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग this one and this one are parental type, ये दोनों parental type दिए हुए हैं। रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हुए, colorless and colored are considered as recombination, recombinant। So number of recombinant is 12 divided by 100 into 100। So percentage recombination कितना मिला, 12%। Distance between colored and full, colored endosperm and full endosperm will be 12 map units। So distance between the gene is 12 map units। Now come to third question. In question number 3, it is given that gray body, long wing is crossed with black body, vestigial wing।
एक क्रॉस किया गया जिसमें ग्रे लॉन्ग को ब्लैक वेस्टिजियल के साथ क्रॉस किया गया। जो इंडिविजुअल ऑब्टेन किए गए उनका रेशियो ग्रे वेस्टिजियल is 24, gray long is 126, black long is 26 and black vestigial is 124. So इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल आर पेरेंटल टाइप, so this and this are parental type. Recombinant type कौन से हैं? Gray vestigial and black long. So what we have to do? Total number of recombinants, that is 24 plus 26 divided by total number of progeny. Total add करेंगे into 100. So this gives the answer as 16.7. So percentage recombination will be 16.7. Hence the distance between the two genes will be 16 map unit. Okay. Now come to question number 4. In question number 4, what is given? In a cross, 1,000 progenies are obtained. Total number of progeny दिए हुए हैं 1000. Out of this 650 are parental type. Total number of progenies हैं 1000. इसमें से 650 पेरेंटल टाइप्स वाले प्रोजेनी है। क्या निकालना है? दो जीन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। नाउ पेरेंटल टाइप अगर 650 है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर 350. नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100. So percent recombination is 35%. So distance between the two genes will be 35 map units. So distance between the two gene A and B will be 35 map units. फोर्थ से ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में A और B के बीच में क्रॉस. टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर total number of progeny given in the question are 2000. 2000 is total number of progeny. Out of this 1700 are parental type. 1700 parental type वाले हैं. Recombinants कितने हुए? 300 divided by 2000 into 100. परसेंटेज डिस्टेंस कितना मिला? रिकॉम्बिनेशन कितना मिला? 15%. इसलिए डिस्टेंस कितना होगा? 15 मैप यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स. Now next question is question number 6. In question number 6 it is given that two recessive gene produces a solid body color and long hair. Recessive character है solid body and long hair. In contrast to dominant character is spotted body colored and short hair. The result of cross between heterozygous spotted haired rabbit to किसको क्रॉस कर रहे हैं अपन? हेटेरोजाइगस स्पॉटेड हेयर rabbit to solid long hair. Solid long hair. Spotted short hair is crossed with solid long hair. इस क्रॉस के रिजल्ट्स क्या आए? Spotted short haired is 5, spotted
long haired is 48, solid short hair is 7 and solid long haired is 40. ये क्रॉस किया, टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं अपने पास? 100. स्पॉटेड शॉर्ट हेयर, दिस इज अ पेरेंटल कैरेक्टर एंड सॉलिड लॉन्ग इज अ पेरेंटल कैरेक्टर. इसमें रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं? स्पॉटेड लॉन्ग एंड सॉलिड शॉर्ट आर रिकॉम्बिनेंट. सो व्हाट वी हैव टू डू? टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 55%. Distance between the two gene will be 55 map units. Okay. Now question number 7. In question number 7 डेटा दिया हुआ है कि जीन A और B के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 20%. जीन A and B are linked. Recombination frequency between gene A and B is 20%. You have to find out अगर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया जाए AA प्लस प्लस और AB के बीच में, तो derive from what will be the percentage of gamete produced. Now what you have to remember, अगर इस तरह का क्रॉस है तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो 4 तरह के होंगे. प्लस प्लस विल बी द गैमेट, प्लस A will be the gamete, then plus B will be the gamete and AB will be the gamete. Okay. गैमेट हमेशा 1:1:1:1:1 के रेशियो में प्रोड्यूस होते हैं. तो ये चारों गैमेट का प्रपोर्शन क्या होगा? 1:1:1:1. क्लियर? नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीन A और B लिंक्ड है, इन दोनों के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 20%. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है, यानी रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर 20 है. अब इस क्रॉस में ये दोनों पेरेंटल टाइप है, यानी रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हुए? प्लस A एंड प्लस B आर रिकॉम्बिनेंट. इन रिकॉम्बिनेंट का नंबर कितना है? 20%, यानी 20 रिकॉम्बिनेंट्स आर देयर. इफ रिकॉम्बिनेंट्स आर 20, ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में आकर करेंगे, यानी 10 विल बी ऑफ प्लस A टाइप, 10 विल बी ऑफ प्लस B टाइप. आउट ऑफ 100 अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है तो रिमेनिंग 80 में से 40 विल बी ऑफ प्लस टाइप and 40 will be of A, B type. Okay, so इसका आंसर होगा D, that is plus 40, A, B 40, plus A is 10 and plus B is 10. Okay, question समझ में आया ये? Now question number 8, simple theoretical सा question है. Test cross of F1 individual with genotype plus and AB के बीच में test cross है, produces offsprings. ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, गैमेट सेग्रीगेट हुआ, 10 सेम इसी तरह से 10 AB है, प्लस A is 10 प्लस B is 40 एंड A प्लस A is also 40. इस डेटा के बेसिस पे अपन को प्रिडिक्ट करना है कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखा जा रहा है, सिस कॉन्फ़िगरेशन है या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है. अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. So answer to this will be A, that is trans configuration. Clear? Then question number 9 is similar to question number 7. Question number 9 में A और B के बीच का distance दिया हुआ है 12 map unit. This is question 9. Distance between two gene is A and B is 12 map unit. यहाँ पे क्रॉस परफॉर्म किया गया. A is crossed with this AABB. इन दोनों के बीच में क्रॉस किया जा रहा है, यानी पेरेंटल टाइप क्या है गैमेट का? AB. इस केस में गैमेट का टाइप AB. F1 hybrid will be heterozygous for both gene A and B. Now in question it is asked, जब F1 hybrid gametes form करते हैं तो what will be the proportion of gametes? Now we know dihybrid produces 4 types of gametes. एक डाई हाइब्रिड में 4 तरह के गैमेट होते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, स्मॉल B, स्मॉल A, कैपिटल B एंड स्मॉल A, स्मॉल B. ये 4 तरह के गैमेट
हमेशा 1:1:1:1 के रेशियो में ही डेवलप होंगे. All the 4 types of gametes are produced in ratio 1:1:1:1. Okay. अब इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ तक सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल टाइप को ध्यान रखना है. यहाँ पे पेरेंटल टाइप गैमेट कौन से हैं? दिस इज पेरेंटल टाइप एंड दिस वन इज पेरेंटल टाइप. ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 12%, यानी ए और बी का जो फॉर्मेशन है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स ये हैं, रिकॉम्बिनेंट्स 12 बन रहे हैं. 6 विल बी ऑफ दिस टाइप, 6 विल बी ऑफ this type, remaining will be of this type, yani 44 will be of AB type and 44 will be of this type. So ये percentage निकलेगा. Answer will be AB is 6, AB 44, AB 44 and AB 6. So answer to this is B, in which this type of gametes are produced. Okay. क्वेश्चन नंबर 10. इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टॉलनेस की जीन T और स्मूथ सरफेस S के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 8%. दैट इज द डिस्टेंस इज 8 मैप यूनिट. सिमिलरली टॉलनेस एंड ओवल शेप के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 20%, यानी 20 मैप यूनिट डिस्टेंस है. थर्ड है ओवल शेप एंड स्मूथ फ्रूट के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 12%. ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब इसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करना है कि ये 3 जीन S, T और O का क्रोमोसोम पे ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होंगे. इसके लिए अपन सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाली 2 जीन को लेंगे. जीन T और O के बीच का डिस्टेंस है 20 मैप यूनिट्स, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20%. सेकेंड, O और S के बीच का डिस्टेंस है S, दिस इज 12 मैप यूनिट. T और S के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मैप यूनिट. नाउ 8 and 12 20, यानी ये ऑर्डर करेक्ट है. सो ऑर्डर ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम विल बी T S O. ओके, सो इसमें ऑर्डर क्या होगा जीन का? T S O विल बी द ऑर्डर. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में अब इन क्वेश्चंस में जो भी डेटा दिया है सबसे पहले अपन उस डेटा को उस तरह से लिख लेंगे सो दैट क्वेश्चन बिकम्स इजियर. A B is 10 map unit, A D is 3 map unit, 3% recombination frequency दी है. और ये अपन ने पहले पढ़ा है कि 1% recombination frequency is equal to 1 map unit. So A D के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 3 map units. B and C is 4 map unit. A and C is 6 map unit. Okay. This data is given in the question. क्या फाइंड करना है? C और D के बीच का डिस्टेंस, यानी C और D के बीच के रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालना है. सबसे पहले अपन एक लाइन पर सबसे दूर प्लेस्ड जीन्स लेंगे A एंड B. A और B के बीच का डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट. ओके, देन A and C. A and C is, this distance is 6 map unit. B and C is automatically 4 map unit. 6 plus 4 is 10. So यहां तक सही जा रहे हैं. Then A और D के बीच का डिस्टेंस है 3 map unit. अब A और D के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है. D का किसी के साथ कोरिलेशन स्पेसिफाइड या किसी के साथ और दूसरों जीन के साथ लिंकेज स्पेसिफाइड नहीं है. अब 2 कंडीशंस ड्रॉ कर सकते हैं. A and D, we can draw D here. अगर D की पोजीशन ये है तो A और D के बीच का डिस्टेंस हुआ 3 मैप यूनिट. ओके, अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो D और C के बीच का डिस्टेंस भी 3 होगा. पहली कंडीशन मिली अपन को 3, जहां पे D और C के बीच का डिस्टेंस है 3. दूसरी कंडीशन जो अपन बना सकते हैं, D की पोजीशन यहां भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. If we draw D here, D के बीच, A और D के बीच का डिस्टेंस है 3,
ओके इस कंडीशन में ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज 6 एंड दिस इज 3, सो ए और सी के डी के बीच का डिस्टेंस 9 आएगा। समझ में आया? यहां पर डी की दो पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डी का और किसी जीन के साथ लिंकेज मेंशन नहीं है। अगर डी की पोजीशन इस साइड प्लेस करते हैं तो डी यहां पे 3, दिस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 6, सो डी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 3 मैप यूनिट। ओके पहली कंडीशन। दूसरी एक और पोजीशन हो सकती है, डी को अगर इस साइड प्लेस करते हैं तो दिस डिस्टेंस ए और सी के बीच का डिस्टेंस नोन है, दैट इज 6 एंड ए और डी का 3, सो सी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सो सी और डी के बीच के डिस्टेंस दो तरह से निकाले जा सकते हैं। एक 3 की पॉसिबिलिटी है अगर डी की पोजीशन इस साइड हो, और 9 की पॉसिबिलिटी है अगर डी की पोजीशन इस साइड हो। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए सी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2%, दैट इज 2 मैप यूनिट डिस्टेंस। बी सी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 13% और 13 मैप यूनिट। बी डी इज 4% और 4 मैप यूनिट। ए बी इज 15% और 15 मैप यूनिट एंड ए डी इज 19% और 19 मैप यूनिट। ये डेटा दिए हुए हैं। इन जीन्स का ऑर्डर क्या होगा क्रोमोसोम पे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले प्लॉट करेंगे अपन लार्जेस्ट डिस्टेंस वाली जीन को, ए और डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 19 मैप यूनिट। ओके देन कम्स ए एंड बी, विल प्लॉट बी हियर। ए और बी का भी डिस्टेंस है 15 मैप यूनिट। ओके देन कम्स बी एंड सी, बी डी 4 है, 15 प्लस 4 दिस इज 19, ये भी हो गया। बी और सी का डिस्टेंस है 13, बी एंड सी इज 13, ए एंड सी इज 2। इफ वी प्लॉट सी हियर, ए सी की वैल्यू है 2 और सी और बी की वैल्यू हो गई 13, 13 प्लस 2 15 भी आ रहा है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा? ए सी बी डी। Order of the genes on the chromosome will be A, C, B, D. That will be the order of the genes on the chromosome. Okay. Then comes question number 13. इसके बाद का जो क्वेश्चन है that is question number 13. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीन फ्रूट फ्लाई में लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड फ्रूट फ्लाई है 66 यूनिट डिस्टेंस। Now you always remember कि दो जीन के बीच में recombination frequency can never be greater than 50%. So it will be either less than or equal to 50%. So answer will be less than equal to 50%. So this fact has to be remembered. दो जीन के बीच की recombination frequency कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होती। Recombination frequency between two genes is either less than और इक्वल टू 50%। डिस्टेंस यहां तक अपन ने पढ़ा 1%, दिस 1 मैप यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ते फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव किया था, बट जब भी डिस्टेंस ग्रेटर देन 50% हो जाए तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन इक्वल टू 50% ही रहती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज लेस देन इक्वल टू 50%। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। CD is crossed with wild type plus plus, F1 hybrid produce हुए रेशियो में plus plus is 450, CD is 440, plus D is 55, plus C is 54. Now ये बहुत easy question है। अब ये आंसर सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। ओके तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर अपन ने किए, इन क्वेश्चंस में दो फॉर्मूला अप्लाइड है। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज इनटू 100 करेंगे। एंड यू ऑलवेज रिमेंबर 1% क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी
will be equal to 1 map unit distance between the two genes. Clear? So just solve this problem.